નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પીનલ આપનું સ્વાગત કરું છું મારા ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ ટોપિકમાં। તો આજે કરંટ ટોપિકમાં વાત કરી રહ્યા છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળા કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળનું આજે વિસ્તરણ થવાનું નક્કી છે। સતત બીજી વાર સત્તામાં આવેલી મોદી સરકારમાં કેબિનેટનો આ પહેલો ફેરબદલ અને વિસ્તરણ હશે, જેના પર સૌ કોઈની નજર છે। ઘણી અટકળો ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે। તમામ અટકળોનો અંત આવશે જ્યારે નવા મંત્રીઓ શપથ લેશે। તો નવા મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં તમામ પ્રોટોકોલને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રપતિ ભવનના અશોક હોલમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં તમામ નવા મંત્રીઓ શપથ ગ્રહણ કરશે ને ત્યારે અંદાજો જે લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે કયા કયા ચહેરાઓને સ્થાન મળશે। એ તમામ જ અટકળો અત્યાર સુધી ચાલી રહી છે તેનો અંત ટૂંક સમયમાં આવી શકે છે। ત્યારે આજે વાત કરી રહ્યા છે કે આ વિસ્તરણ પહેલા ખાસ કરીને મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા। જે રીતે ઘણા સમયથી આપણે રાજકીય પરિવર્તનો જોઈ રહ્યા છે, જે રીતે ખાસ કરીને જોવા મળ્યું કે મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો, જે પ્રકારે રાજ્યપાલોની બદલી કરવામાં આવી, નવા રાજ્યપાલોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી। તે ઉપરાંત વધુ એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નવા મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અગાઉ મોદી સરકારે જે વધુ મહત્વનો નિર્ણય કર્યો। મોદી સરકારે એક નવા મંત્રાલય મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોઓપરેશન બનાવ્યું છે। તો મોદી સરકારના આ મંત્રાલયની મદદથી પોતાના સહકારથી સમૃદ્ધિના વિઝનને સાકાર કરશે। ખાસ કરીને જે પ્રકારની જાણકારી મળી રહી છે, જે ઉદ્દેશ્ય છે આ નવા મંત્રાલય પહેલા જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોઓપરેશન બનાવવામાં આવ્યું છે તેનો ઉદ્દેશ્ય જે છે તે દેશમાં સહકારી આંદોલનને મજબૂત કરવા માટેનો છે। ત્યારે જ્યારે નવા મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરવામાં આવશે તે પહેલા જે પ્રકારના પરિવર્તનો જોવા મળી રહ્યા છે, તે સાથે જ જે નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે, ગુજરાતમાંથી કયા ચહેરાને સ્થાન મળી શકે છે, મધ્યપ્રદેશમાંથી, સાથે જ યુપીમાંથી વધુમાં વધુ ચહેરાઓને સ્થાન મળી શકે છે। તમામ જે અત્યારે જાણકારી મળી રહી છે સૂત્રો પરથી ને સાથે જ જે નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે, જે નિર્ણયો પહેલા લેવામાં આવી રહ્યા છે, તે તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરીશું, રાજકીય ગતિવિધિઓની વાત કરીશું। જેની માટે મારી સાથે અત્યારે ખાસ જોડાઈ ગયા છે પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ हर्षवर्धन पांडे जी। हर्षवर्धन पांडे जी, आपનું સ્વાગત છે करंट टॉपिक में। तो हर्षवर्धन जी, सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से हम कैबिनेट विस्तरण के पहले मोदी सरकार जो निर्णय ले रही है उनके बारे में आपका क्या मानना है? पहला जैसा कि हमने देखा कि तमाम जो गवर्नर्स हैं उनकी बदली की गई, नवे गवर्नर्स की नियुक्ति की गई और उसके बाद जो महत्व का निर्णय लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम की नवे मंत्रालय की रचना की गई है। किस मोड में दिख रही है अभी आपको मोदी सरकार, जबकि थोड़े ही समय में मतलब शाम तक हमें नवे जो भी नाम है उनकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले ये जो गतिविधियां देखने मिल रही है उससे क्या लगता है किस मोड में देखने मिल रही है सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं देश के अंदर कि जब से कोरोना के कारण जो है आर्थिक गतिविधियां ठप हुई हैं और अर्थव्यवस्था की सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंत्रालयों की जो है समीक्षा की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष कल जो है अमित शाह के साथ बैठे थे और 2.5 घंटे दोनों के बीच काफी मैराथन चर्चा जो है वो हुई थी। उसमें सबसे पहले तो कल इस तरह की खबर आई कि जो 8 राज्यपाल हैं उनको जो है जिम्मेदारी जो है दी गई है। रमेश बैस से लेके आप देखें मंगू भाई और आपके हके हरिबाबू मिजोरम के, इसी तरह से थावरचंद गहलोत को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिला के जो है राज्यपाल वगैरह बनाया गया। तो इसके बाद से हम देखें कोरोना के बाद से जो है कहीं ना कहीं सरकार की छवि को जो है सुधारने की तरफ जो है सरकार जो है बढ़ती दिखाई देती है। राजनीति में सबसे बड़ी बात है परसेप्शन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और परसेप्शन के मोर्चे पर अगर हम देखें तो कोरोना के चलते पिछले कुछ समय से जो है इस सरकार के अंदर जो है मोदी सरकार के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली है। तो इन्हीं सब चीजों को मैनेज करने के लिए ये परिवर्तन जो है किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम देखें शाम को 6 बजे के आसपास जो है मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही है। इसमें भी राजनीतिक चीजों को देखते हुए 5 राज्यों के जो चुनाव है उन सबके मद्देनजर जो है फेरबदल किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो बहुत हद तक सही भी होगी। इसके अलावा सहकारिता जो है, जैसा कि मैं आप पिछले लंबे समय से मोदी सरकार जो है किसानों की खुशहाली के लिए और गांव, गरीब और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं बना रही है, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, हम किसान सम्मान निधि की बात करें, तो इसी तर्ज पे सहकारिता एक नया तरह का प्रयोग होगा जिसका लाभ जो है गांव के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बाद में पता चल पाएगा कि इस मंत्रालय की जिम्मेदारी कौन संभालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह फिर से गांवों से कनेक्ट करने की कोशिश इस सहकारिता मंत्रालय के जरिए करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या लगता है आपको हर्षवर्धन जी, इस बार ही इस बात पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है? अभी तक के हम जैसा कि देख सकते हैं कि
मोदी वाले की बात की, तो इस मुद्दे पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं कम से कम नेताओं के साथ काम किया गया है। 2014 की अगर बात करें तो तब मिनिस्ट्री में 28 मिनिस्टर, तब भी लगभग 54 दिख रहे हैं, और उसके बाद और भी 20 नामों का समावेश किया जा सकता है। क्या लगता है आपको कि अभी इस मुद्दे पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम के नवे मंत्रालय की जो रचना की जा रही है, क्या उद्देश्य लग रहा है? उद्देश्य यही है कि किसान आंदोलन को लेकर आप देखें कि लंबे समय से, पिछले 7-8 महीने से देश के अंदर जो है किसान आंदोलन चल रहा है। अभी भी जो है वो दिल्ली की सीमा से हटने के लिए किसान जो है हमारे तैयारी नहीं है। उसके बाद से कोविड को लेकर जिस तरह की अव्यवस्था, त्रासदी जो है देश के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर इस दूसरी पीक के अंदर देखने को मिली, उसके बाद से स्थितियां जो है बहुत तेजी के साथ चेंज हुई हैं। और मोदी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, प्रधानमंत्री, कि उनकी छवि पर किसी तरह का कोई असर पड़े, क्योंकि इस सरकार की एक खासियत यह है कि मोदी सरकार के मंत्रियों की छवि भी जो है प्रधानमंत्री के कारण है। प्रधानमंत्री गेम चेंजर है। हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम के आगे ही जो है चुनाव लड़ा जाता है, चाहे राज्यों का हो चाहे केंद्र का हो। तो कहीं ना कहीं अपनी छवि को जो है बदलने की कोशिश ये की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो तकरीबन 50 मंत्री इस मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथ शामिल हैं। आखिरी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें 76 के आसपास मंत्री थे। तो अभी आज ऐसी संभावना जताई जा रही है तकरीबन 20 तो नहीं, 20 से ऊपर ही रहेगा। 25 से 28 मंत्री जो है नए चेहरे इसमें आ सकते हैं। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई मंत्री हैं बड़े जिनके कामों से प्रधानमंत्री जो है वो खुश नहीं है, उनकी जो है छुट्टी होने की पूरी संभावना है। और शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है, उनकी तो छुट्टी भी हो चुकी है अभी। तो ऐसे कई नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो अब देखना होगा शाम तक क्या स्थिति बदलती है। तो कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा करने की कोशिश आज की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट मनस्वी थापर जी। मनस्वी थापर जी, स्वागत है आपका करंट टॉपिक में। तो मनस्वी थापर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनस्वी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी पीनल जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी मनस्वी जी, सबसे पहला सवाल, मोदी कैबिनेट की जो विस्तरण होने वाला है उसके पहले जिस तरह के चेंजेस देखने मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी हर्षवर्धन जी से बात की, और खास करके जैसे कि नए गवर्नर्स की नियुक्ति की गई और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नाम के नए मंत्रालय की रचना की गई है, क्या लगता है आपको कि जिस तरह की गतिविधियां अभी देखने मिल रही है, जैसा कि कोरोना काल में कई सवाल उठे हैं गवर्नमेंट पे, और उसी के साथ कई जगहों पर कोरोना काल में की गई जो कामगिरी है उस पर भी कटाक्ष हुए हैं, लगता है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अभी जो भी गतिविधि देखने मिल रही है सभी बातों को ध्यान में रखा गया और यही बातों को ध्यान में रख के ही नए जो चेहरे हैं उनकी पसंद की जाएगी? पीनल जी देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये जो आज का मंत्रालय बनने जाने वाला है, ये आने वाले कल का जो भविष्य है भारत का और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, उसकी नींव रखेगा। और बीजेपी जो पार्टी है, जो एनडीए को गवर्न करती है, एनडीए का सबसे बड़ा प्लेयर है, एनडीए इससे ज्यादा कमजोर एज एन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं था। जहां पे उनके पास दूसरा कोई सबसे बड़ा दल अगर दिखता है बीजेपी के बाद है, वो है जेडीयू। और जेडीयू के साथ भी उनका कभी दोस्ती कभी दुश्मनी जैसा उनका इतिहास रहा है। उनके यही पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें, टीडीपी छोड़ के गया है, शिवसेना छोड़ के गया है, अकाली दल छोड़ के गया है, आरएलपी छोड़ के गया है, गोवा फ्रंट पार्टी छोड़ के गया, गोवा फॉरवर्ड पार्टी छोड़ के गया है। तो ये जो दौर रहा है 2019 के बाद, लगातार जो अलायंस है वो छोड़ते लगातार जा रहे हैं बीजेपी को, एनडीए को। तो ये एक बड़ा सवाल उठाता है नेतृत्व को, और ये सवाल क्या उठाता है कि हम अलायंस की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये जो रीशफलिंग होने वाला है, ये जो रीजिग होने वाला है, ये इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जहां पे बीजेपी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग अपने अलायंस की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको मौका देंगे। ये पहला इसका एक जवाब है मेरा। दूसरा जवाब जो इस पूरे रीशफलिंग का है पीनल जी, वो ये है कि ये जो आया राम गया राम लॉबी है, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं हमको सेटल करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है और एक मैसेज देना पड़ता है कि अगर बीजेपी में कोई व्यक्ति आता है दूसरी पार्टी से या कांग्रेस से आता है, तो उनको हम इजीली एब्जॉर्ब करते हैं और उनको जो वादा करते हैं उस वादे पे हम खरे उतरते हैं। तो ये मैसेज भी बीजेपी देना चाहेगी। ये वो रिशफलिंग का ये आइडिया है। क्या मनस्वी जी, उन तमाम लोगों को किए हुए वादों को पूरा करने के लिए तो सरकार कटिबद्ध देखने मिल रही है, लेकिन जनता को किए हुए वादों का क्या? जिस तरह की कोरोना काल में बिगड़ी हुई इमेज, उसे सुधारने के कितने प्रयास रहेंगे मनस्वी जी?
देखिए उसके लिए क्या है कि ये जो तीसरी कड़ी है, उसी पे मैं आना चाह रहा था। ये जो तीसरी कड़ी है इस रीशफलिंग की पीनल जी, वो तीसरी कड़ी है जो जनता से सीधा जो संदर्भ होगा, जो जनता से सीधा वार्तालाप होने वाला है 2022 में, जो इमीडिएट आपको दिखाएगा। 5-6 जो राज्यों के इलेक्शन है, उनको भी कहीं ना कहीं उनके जो लोकल लीडरशिप है उनको कहीं ना कहीं आपको सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको देखेंगे अभी कल से लेके आज तक मैं तमाम चैनल्स में, नेशनल मीडिया में मैं गया हूँ और डिस्कशन किया है। हमारे को 3-4 कीवर्ड्स पीनल जी सुनाई देते हैं। एक तो यंगेस्ट एवर कैबिनेट, दूसरा विमेन सेंट्रिक कैबिनेट, तीसरा इंक्लूसिव कैबिनेट जहां पे ओबीसी एससी सबको इंक्लूड करके ये कैबिनेट बना जाएगा, आधारित कोटे को ध्यान में रखा जाएगा। चौथा की नया मिनिस्ट्री क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम आपने भी यूज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो ये सारी चीजें ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, फर्स्ट टाइम एवर, ये सारी चीजें तो हमको दिखाई दे सकती हैं इस मंत्रालय में। पर मेरा सवाल क्या है, अच्छा दिखने वाला नहीं मंत्रालय चाहिए हमको, असरदार मंत्रालय चाहिए। वो वाला मंत्रालय चाहिए जो देश की जो समस्याएं हैं उनको हल कर पाए। यहाँ पे क्या है, कोरोना के बाद आपका सवाल घूम फिर के पीनल जी यही आता है कि कोविड के बाद क्या, कोरोना काल के बाद क्या, उसका उत्तर हमको अभी तक नहीं मिला। हमको जो कॉस्मेटिक लुक है, हमको जो प्लास्टिक सर्जरी से जो अच्छी तरह दिखाने जाने वाला एक मंत्रालय होना चाहिए, वो जरूर दिखाई देगा। पर क्या ये मंत्रालय, क्या इनमें इतनी कॉपरेशन हो सकती है कि कोरोना को हटाने की बात किया जाए? क्या ये मंत्रालय मिलके जो डूबी हुई इकोनॉमी है इसको तैरा सकती है वापस? क्या ये मंत्रालय जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो जॉब लॉस हुआ है उसके सामने जॉब क्रिएशन कर पाएगी? ये बहुत बड़े सवाल है। ये जो चुनौती है ये सबसे बड़ी है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी एट प्रेजेंट हमारे देश में, यूनियन ऑफ इंडिया में 53 मिनिस्टर्स हैं। आप मैक्सिमम 28 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हो, 28 और मिनिस्टर्स क्रिएट कर सकते हो, 81 मिनिस्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो इन टोटलिटी। अब इसके बाद हम लोग जो नाम सुन रहे हैं, मैंने पूरा कैलकुलेशन किया कल से लेके आज तक, कुछ 60-70 लोगों के नाम हवा में घूम रहे हैं, डबल नाम घूम रहे हैं। तो मिलने वाले तो किसी 23 से लेके 28 लोगों को ही मिनिस्ट्री है। तो एक सेंस ऑफ, अभी एक जो एक्साइटमेंट होता है, ट्रेलर दिया जा रहा है, एक्साइटमेंट दिया जा रहा है, तो ये उस प्रतिक्रिया में बिल्कुल सही है। पर जो अंत सवाल रहता है कि ये मंत्रालय जो क्रिएट होंगे, उन मंत्रालयों में क्या कोविड के बाद जो हमारा देश की अभी जो गिनती होगी 2 तरीके से होगी, कोविड से पहले का देश और कोविड से बाद का देश। कोविड के बाद जो हमारे देश की समस्याएं हमारी उभरी है और जो अपॉर्चुनिटीज उभरी है, क्या उनको हम टैकल कर पाएंगे? क्या ये एक स्लोगनबाजी रहेगी? क्या ये 2022 के इलेक्शन के लिए है या 2024 के इलेक्शन के लिए रीशफलिंग है? तो इससे कोई मॉन्यूमेंटल फर्क देश को नहीं पड़ेगा। पर शायद ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरोना से पहले का देश और बाद का देश, ये कंपैरिजन तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी तो इस बात को दी जाएगी। इसीलिए जो मंत्रालय सहकारी समिति है उसमें जो व्यापार है, यानी डूइंग बिजनेस प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो जो रोजगारी का मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपका क्या मानना है? जो चुनौतियां मनस्वी जी बता रहे हैं यहाँ पे, उन चुनौतियों को पूरा करने का कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये नए मंत्रिमंडल में। लेकिन जैसा कि हमने बात की, जो नए मंत्रिमंडल को प्रोफेशनल मैनेजमेंट, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे युवा चेहरों को स्थान मिलेगा और दूसरी बात महिलाओं को स्थान मिलेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं इन चुनौतियों के सामने नहीं। हम देखिए, सबसे बड़ी बात अर्थव्यवस्था की है। अर्थव्यवस्था में आप देखें 22 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के जो है नीचे जा चुके हैं। ये अभी की बात है कोरोना के बाद। और 2004 से लेकर 2016 के बीच का अगर डाटा आप उठा के देखें तो तकरीबन 27 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से ऊपर चले गए थे। तो सोचिए कि भारत के अंदर अभी किस तरह की स्थितियां जो है कोरोना के बाद जो है बन चुकी है। औद्योगिक विकास दर जो है आपकी लगातार नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था ढलान पे जा रही है और -7 से -8% जाने को तैयार है जो ग्रोथ रेट है। तो अगस्त में फिर से थर्ड वेव अगर आती है तो हालात बहुत बुरे हो सकने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसको देखते हुए जैसा मनस्वी जी कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इसके जरिए जो है सभी को साधने की कोशिश की जाएगी। खास बात यह है कि दलित, अति पिछड़ा और तमाम सामाजिक समीकरण है, उसके साथ साथ युवा और महिला, इन सबको मिलाते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो है वो जगह दी जाएगी। और 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं
प्रतिनिधित्व जो है दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा के निशाने पर 2022 से यूपी पक्ष है हर्षवर्धन जी, साथी पक्ष है, उनका भी समावेश बहुत ही मतलब कैलकुलेशन के साथ किया जाएगा। बिल्कुल। बंगाल का चुनाव आप देखिए, बंगाल चुनाव हारने के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैक फुट पे आ गई है। एक तरह से वो पहले सोचते थे कि हम हर जगह जो अपनी सरकार बना सकते हैं, कहीं भी सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो है जिस तरीके से 200 प्लस का नारा उन्होंने बंगाल के चुनाव में दिया, और उसके बाद से जैसी पार्टी की फजीयत हुई, 2.5 का आंकड़ा भी पार्टी नहीं छू पाई, 100 का आंकड़ा जो है, तो उसके बाद से जो है स्थितियां लगातार बदल रही हैं। और उत्तर प्रदेश में हम देखें कि उत्तर प्रदेश जो है वो चलता है, 80 सांसद आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर आप अच्छी पोजीशन में, आपका वोट का परसेंट बढ़ता है, तो उसको देखते हुए आप पूरे देश के अंदर जो है मतलब अपना शासन कर सकते हैं और अच्छी सत्ता की में अपना ठसक जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का फोकस पूरा यूपी की तरह है। जो यूपी में अपना दल है अनुप्रिया पटेल, वो शायद इस बार इस मंत्रिमंडल में फिर से एक बार शामिल होंगी। 2019 में भी उन्होंने कहा था कि कैबिनेट मंत्री से कम हमें मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो तैयार नहीं हुई थी। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है जेडीयू से जो है वो 4 मंत्री जो है वो आएंगे। जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वो शायद आएंगे। इसके अलावा दिलेश्वर कामत का नाम कंफर्म है, चंद्रशेखर प्रसाद जो है वो कंफर्म है, और रामनाथ ठाकुर जो है वो जेडीयू से आ सकते हैं। इसके अलावा बंगाल की बात करें तो वहां से मतुआ समुदाय को साधने की भी पार्टी की तरफ से कोशिश जो है वो की जा सकती है। इसी तरह से हम पंजाब देखें, पंजाब में भी बहुत बड़ा वोट है, 32% के आसपास जो है ये वोट पड़ता है, जो 32-33% के आसपास सिक्कों का वोट है। तो वहां पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है। आप देखें जिस तरीके से पंजाब के अंदर टसन बढ़ रही है, कांग्रेस के अंदर सिद्धू और अमरिंदर का विवाद जिस तरह से सोनिया गांधी के पास पहुंच गया है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इन राज्यों में चुनाव है, तो इन सबको देखते हुए पार्टी जो है आकलन करेगी कौन उसके पैमाने पर खरा उतरता है। साथ ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कमलनाथ की सरकार को गिराने में, ऑपरेशन लोटस चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरे हैं, जनाधार वाले नेता हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना सब जगह उनका जबरदस्त जनाधार रहा है वहां पर, तो वो शायद यहाँ पर आएंगे। इसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें, नारायण राणे जो है वहां से आएंगे, क्योंकि नारायण राणे एक ऐसे शख्स हैं जो कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते रहे हैं, वहीं शरद पवार के खिलाफ भी वो लगातार मुखर होकर अपनी बात जो है दोहराते रहे हैं, तो वहां से ये आ सकते हैं। इसी तरीके से दिल्ली की बात करें तो मीनाक्षी लेखी का दावा थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है यहाँ पर, और भी कई चेहरे हैं इस तरीके से जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की इस बार का जो विस्तार है इसमें आएंगे। साथ ही कहने का मतलब ये है कि छोटे दलों पर भी पार्टी अपना पूरा फोकस कर रही है, और इस बार पूरी कोशिश है कि इन छोटे छोटे दलों को साथ कर भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनावों के लिए मैदान में जा रही है, और 2022 जीतने के बाद फिर 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसकी बिसात पूरी तरह से जो है वो बिछेगी। जी मनस्वी जी, हर्षवर्धन जी ने लगभग सारे जो भी नए चेहरे या जिनका भी समावेश हो सकता है या किया जा रहा है उनका नाम अभी लिया है। तो आपको क्या लगता है ये नाम सुनकर कि कहीं ना कहीं इलेक्शन बेस्ड ही ये नेम फिर से सुनने मिल रहे हैं, या फिर जो महत्व जो चुनौतियों की आपने बात की उनको ध्यान में रख के इन चेहरों की पसंदगी की गई है? देखिए, अभी हमारे को समझना पड़ेगा कि ये जब राजनीति में हम होते हैं तो राजनीति में जिस तरीके से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, राजनीति में कभी प्यार होता है कभी लड़ाई होती है, तो एवरीथिंग इज फेयर। और उसी हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि जिस तरीके से ये अगर नाम लिए जा रहे हैं, मेरे मित्र हर्षवर्धन ने जैसे नाम लिए हैं, ये नाम देखिए ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं नाम पिछले 2-3 दिनों में। जिस तरीके से दिल्ली में ये लोग जा रहे हैं, दिल्ली में बातें करने, और आज तक किसी राजनेता ने हमारे को ये नहीं बोला जब उनको मिनिस्ट्री दी जा रही है या उनको सीट भी दी जाती है जो उनको पता ही नहीं होता, एकदम से रैंडमली उनको चमत्कार होता है, पता चलता है कि आज हमको सीट मिली जाती है। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारा देश 70 साल के बाद इस चीजों से परिचित है। कोई भी आके नहीं बोलेगा कि हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही। कई लोग तो कपड़े सिलवाने चले जाते हैं, कई लोग फिर वो कपड़े जो सिलवाए होते हैं, नई नई कोटी सिलवाते हैं, वो पहनने का मौका नहीं मिलता। कई लोगों ने नहीं सिलवाए होते हैं, उनको मिल जाता है। तो बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहता है जब भी कैबिनेट बनता है या जब भी टिकट आप बांटने जाते हैं, तो ये रोमांच तो रहता है। पर इस रोमांच के साथ जो रहता है ये 1-2 दिन का रोमांच रहता है, इसके बाद होता है काम करने की आपकी ताकत। और वहां पे कहीं ना कहीं हमारे को पीनल जी, जो आपका सवाल हमेशा से रहा है, वो वाले उत्तर हमको नहीं मिल रहे हैं। ये जो है ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जहां पे एकदम देश की जो रूह है उसको हम लोग कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश करें। ये है कि अगर ये उत्तर हमें नहीं मिल रहा है अभी भी क्लियर, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह की इमेज अभी है और अभी भी अगर उसका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है, क्लियर जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका नुकसान हो सकता है।
देखिए, हमने देखा है कि हमारे इलेक्शन जो पॉलिटिकल रहता है, वो जब भी आप लड़ते हो ना इलेक्शन, या जब भी आप वोट करने जाते हो पीनल जी, तो आपके दिमाग में मुद्दे एक दो ही मुद्दे रहते हैं, और वो जो ताजा ताजा मुद्दे रहते हैं उन्हीं मुद्दों पे आप वोट करते हो। आज का जो कोरोना काल है, ये 2024 में शायद हमारा मुद्दा नहीं रहेगा। आज की जो बेरोजगारी शायद 2024 में मुद्दा नहीं रहेगा। और आज की जो तकलीफ है, और इन 5-6 राज्यों की अगर हम बात करें, यूपी की, उत्तराखंड की, पंजाब की, गुजरात की, हिमाचल प्रदेश की, इन राज्यों की जो जो कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है, ये अगर आज कर दी है, और आने वाले 1-1.5 साल में लगातार इसमें कुछ ना कुछ माइन्यूट चेंजेस, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हो, चाहे यहाँ पे हो, तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी के हिसाब से ही लोग वोट करने जाएंगे। लोग भूल जाएंगे कि 2020 में आर्थिक तंगी थी, लोग भूल जाएंगे कृषि कानून के कारण किसानों का कितना नुकसान हुआ है, लोग भूल जाएंगे कि किस तरीके से हमने देखा है कि कोरोना काल में लाखों लोगों की मौत हुई है। सही है मनस्वी जी, फिर तो उस हिसाब से सरकार की तैयारी भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल पीनल जी, सरकार जो कर सकती है, सरकार जो कर सकती है, दिखा सकती है, वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पीनल जी। आज जो हमारे देश की स्थिति है, आर्थिक स्थिति हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की हालत हो, या युवा जिस तरीके से अंधकार में हमारे देश में है, कि जो बच्चा 10th और 12th के एग्जाम दिए बिना आगे बढ़ रहा है, तो उसका बढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी है, एक जो स्ट्रेटेजिक थॉट होनी चाहिए हमारे देश की 21वीं सदी के भारत की, वो सोच की हम बात नहीं कर रहे। हम किस तरीके की बात कर रहे हैं? आज हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी मिनिस्ट्री की बात हो, तमाम मीडिया हाउसेस किस चीज को कवर कर रही है? वो इस चीज को कवर कर रही है कि कौन मिनिस्टर बनेगा या नहीं बनेगा। किससे नाखुश है मोदी जी और किससे खुश है मोदी जी? आने वाले चुनावों में क्या इन मंत्रालय में लोग आए हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? हमारा डिस्कशन ये, आज के दिन का जो प्राइम टाइम है, आज के दिन का जो टोटल टाइम है हमारे देश का, इस चीज में डिस्कशन है, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, किसके सिलाए हुए कपड़े काम आएंगे या नहीं आएंगे। आज का डिस्कशन ये है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो जीत है, ये आने वाले 5 राज्यों में जो सिंबॉलिक और कॉस्मेटिक जीत होनी चाहिए, वो हो चुकी है बीजेपी की। एक मैसेज जो पहुंचाना होता है कि आपके दिमाग का 1/3 हिस्सा मोदी जी हो, बीजेपी हो, इन्हीं की बात करो, वो पूरी हो रही है। और जब हम इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं बातों की बात करते हैं, तो जो ग्रास रूट के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मुद्दा क्या है आज की डेट में कि कोविड के बाद जो बेरोजगारी हुई है उसको कैसे करें, कोविड के बाद जो मध्यम वर्ग है, जो ऐसा सैंडविच हमारे देश में हुआ है जो इससे पहले ना कभी हुआ है ना कभी होगा, उसको कैसे सही दिशा दी जाए। जी समय थोड़ा कम है, लेकिन हर्षवर्धन जी, मनस्वी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, लगता है कि जैसा कि हमने बात की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नाम के नए मंत्रालय की रचना, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ हर्षवर्धन जी के टाइम में बीच में आ रहा हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर एक मिनिस्ट्री जरूर ऐड होनी चाहिए, चाहे आपके माध्यम से आप प्रधानमंत्री जी देख रहे हो या उनके एडवाइजर्स देख रहे हो। मिनिस्ट्री ऑफ असेसमेंट, कितना काम कौन सा मिनिस्टर और मिनिस्ट्री करती है, उसका एक असेसमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ जब उनको फंड एलोकेशन होता है, कितना एलोकेट होता है, कितना यूटिलाइज होता है, कितना अनयूटिलाइज होता है, इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट में पार्लियामेंट में पेशी होनी चाहिए इन सब चीजों की। और जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि कौन सा मंत्री कैसा काम करता है, उसका भी जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले नए भारत की नींव रखनी जाने की बात है। अगर रिपोर्ट कार्ड बन भी गया ना, तो वो अंदर ही चेक होगा, शायद फिर भी वो हमारे सामने नहीं आएगा। अगर बन भी जाता है तो डिमांड पे। हर्षवर्धन जी, जिन चुनौतियों की और जिनकी बात अभी मनस्वी जी ने की है, लगता है जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये नए मंत्रालय की रचना और इसी के साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है उससे ज्यादा अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास, और उसके साथ केंद्र सरकार कम्युनिटी आधारित डेवलपमेंट पार्टनरशिप को ज्यादा से ज्यादा प्रतिबद्ध करेगी, उसका संकेत दे रही है। तो कहीं ना कहीं रोजगारी का जो मुद्दा है, इकोनॉमी का जो मुद्दा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अंत में क्या लगता है आपको हर्षवर्धन जी? हाँ, बिल्कुल सरकार की कोशिश है। अभी सहकारिता मंत्रालय जो बनाया गया है, इसका जो है कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री के असेसमेंट का न्यूज चैनल में बैठ के तो सब डिस्कस करते हैं, लेकिन पीएम मोदी का अपने आकलन का अलग तरीका है। वो किस मंत्री के काम से कैसा खुश है वो तो वही जानेंगे, क्योंकि वो अपने तरीके से उसका आकलन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम को इस मंत्रिमंडल में कई युवा चेहरे जो है वो नजर आएंगे, कि युवा जो है वो भाग दौड़ भी कर सकते हैं और काफी हद तक जो है वो देश जी वो तो सारे नाम जब आपकी बहुत ज्यादा है।
इसको देखते हुए पिक्चर कहीं ना क्लियर कहीं होगी और इसी के साथ वो नाम सामने आने के बाद वो सही में जितनी एक्सपेक्टेशन है उस तरह के काम करेंगे या नहीं, वो भी एक सवाल है। समय समाप्त होता है। मनस्वी थापड़ जी और हर्षवर्धन पांडे जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે આજે વાત કરી છે મોદી કેબિનેટ 2.0, મોદી કેબિનેટમાં કોને સ્થાન મળશે તે મુદ્દા પર તો ચર્ચા કરી છે, પરંતુ તેની સાથે જ જે ચહેરાઓની પસંદગી કરવામાં આવી રહી છે અને ખાસ કરીને કરવામાં આવશે, નામો જ્યારે સામે આવશે ત્યારે જે જનતાને અત્યાર સુધીની જે તમામ સમસ્યાઓ છે તે સમસ્યાઓ પૂર્ણ કરવામાં એમનું કેટલું મહત્વનો ફાળો રહેશે તે પણ એક અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવી છે। તેની સાથે જ કોરોના કાળમાં જે પણ ઇમેજ પર અસર થઈ છે સરકારની અને તેની સાથે ઇકોનોમી જે સૌથી મહત્વનો મુદ્દો છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આ ચહેરાઓની પસંદગી કરવામાં આવશે કે કેમ, અને સાથે જ આ મોદી મંત્રીમંડળનું જ્યારે વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યાર પછી જે નામો સામે આવશે તે ખરેખર તમામ કામો કરવા માટે સક્ષમ હશે કે કેમ, એ તો આવનારા સમયમાં જ્યારે તમામ નામો સામે આવશે ત્યારે જ તે સવાલોના જવાબ મળશે। તો કરંટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।